السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل AIOU اسٹڈی۔ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شروع سے لے کر آخر تک یعنی کہ داخلہ کیسے لیتے ہیں، آن لائن ID کیسے بنائی جاتی ہے، اور اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کون کون سے پروگراموں میں داخلے اوپن ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے، اور ہم کس طرح سے ایڈمیشن لیں گے، اس پہ مکمل تفصیل سے بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے یعنی کہ ٹچ موبائل ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کر آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں تو آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے ڈاکومنٹ سب چیزیں اپڈیٹ کر کے جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بہت ہی آسانیاں پیدا کر دی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو آئیں جی جانتے ہیں کہ آپ نے جو ہے سب سے پہلے ایڈمیشن کیسے لینا ہے اور اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کون کون سے پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ ریڈ سا سبسکرائب کا بٹن ہوگا، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ گھنٹی کے بٹن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر لیں۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی آنے والی تمام تر نیوز اپڈیٹ بروقت آپ کو ملتی رہیں گی۔ یہاں پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کون کون سے پروگراموں میں داخلے اوپن ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی، سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس وقت BA، اسوسیٹ ڈگری، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز، یہ تمام تر پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی، سب سے پہلے BA میں آپ کے پاس دو پروگرام ہیں، BA جرنل ہے، BA BCom ہے، یعنی کہ BA جرنل اب آپ BA کر سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، جس میں آپ کے پاس دو پروگرام ہیں، ایک ہے BA اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس، دوسرا ہے BCom اسوسیٹ ڈگری ان کامرس۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسوسیٹ ڈگری پروگرام آ جاتے ہیں جسے ADE کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اسلامک بینکنگ ہے، HRM ہے، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے، مارکیٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ BS پروگرام ہے آپ کے پاس، جس میں آپ کے پاس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس ہے، عربک سبجیکٹ ہے، انگلش ہے، جنڈر اینڈ وومن اسٹڈی ہے، انسٹرکشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی ہے، لائبریری اینڈ سائنس انفارمیشن ہے، ماس کمیونیکیشن ہے، پاکستان اسٹڈی ہے، اردو ہے، اسلامک اسٹڈی میں آگے بہت ساری برانچز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز آ جاتے ہیں 1 ایئر کے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ 14 ایئر ایجوکیشن کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ کورسز آ جاتے ہیں 6 منتھ کے، اور پھر آ جاتے ہیں سرٹیفکیٹ کورسز 3 منتھ کے۔ اس کے بعد آپ کے پاس BBA پروگرام ہے 4 ایئر کا۔ اس کے علاوہ نیچے ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے، جس کے بعد آپ کے پاس اسوسیٹ ڈگری آپ کے پاس ایجوکیشن آ جاتا ہے، جیسے AD کا جاتا ہے 2 ایئر پروگرام ہے، جو آپ FA کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس B.Ed 1.5 ایئر، جو کہ آپ MA MSc کے بعد کر سکتے ہیں 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد۔ اس کے بعد آپ کے پاس 2.5 ایئر کا B.Ed ہے، جو کہ آپ 14 ایئر ایجوکیشن کے بعد کر سکتے ہیں۔ B.Ed 4 ایئر، جو کہ آپ FA FSc کی بعد آپ اس میں اپنے آپ کو ایڈمیشن جو ہے کروا سکتے ہیں، انرول کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں یہ جتنے بھی پروگرام ہیں، ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 18 اکتوبر ہے۔ اس میں 2 پروگراموں کا ذکر میں نے نہیں کیا جو کہ اس میں نہیں لکھے ہوئے، کیونکہ یہ فیز 2 ہے، وہ فیز 1 کے پروگرام ہے۔ میٹرک اور FA پروگرام میں آپ اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 14 اکتوبر ہے، 14 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ وہ بھی ہم انرول کرنا سیکھیں گے کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو انرول کروانا ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری ایجوکیشن جو ہے اس کے ریلیٹڈ کون سا کورس ہے، میں جو ہے FA میں جو ہے کس بیس پہ ایڈمیشن لے سکتا ہوں، BA میں کیسے لے سکتا ہوں، BS میں جو ہے کتنی تعلیم درکار ہوگی۔ یہ سب چیزیں آپ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ پہ آنا ہوگا، یہاں پہ لکھنا ہوگا AIOU.edu.pk، گوگل پہ لکھیں گے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ تو آپ کے پاس یہ جی آن لائن ایڈمیشن فارم، جیسے آپ یہاں پہ آن لائن ایڈمیشن فارم کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو فارمز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے، آن لائن ایڈمیشن فارم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جی ڈاؤن لوڈ پراسپیکٹس، آپ نے سب سے پہلے جو ہے نیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر انٹرنیشنل ہے یعنی کہ پاکستانی ہیں اور باہر کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ یہ نیچے والا پراسپیکٹس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ لوگوں کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس تمام پروگراموں کے پراسپیکٹس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ BA میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ BA کا پراسپیکٹس کے آگے یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے پاس PDF میں اوپن ہو جائے گا BA کا پروگرام کا جو پراسپیکٹس ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، اس میں مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے کورس کے حوالے سے کون کون سے کورس آپ نے رکھنی ہیں، بکس فرسٹ سیمسٹر میں کون سی رکھنی ہے، فی کتنی ہے، سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں بالکل فری میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اب بات کرتے ہیں کہ اب اس میں ہم اپنے آپ کو انرول کیسے کریں گے۔ آپ اس میں جو ہے سب چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے BS کے لیے جو ہے آپ کے پاس FA کا ہونا ضروری ہے یا FSc کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس کتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ سب سے پہلے ایڈمیشن فار فریش اپلیکینٹ کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ سامنے آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ نے کریٹ اکاؤنٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کریٹ اکاؤنٹ کا بٹن ہے، جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ 2 طریقوں سے جو ہے اپنا ایڈمیشن کا جو یہاں پہ ID ہے وہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے
कि आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखें, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिखे यहाँ पे नीचे आप पासवर्ड लिखें, कंफर्म पासवर्ड करें। आपके ईमेल पे एक मेल आएगी इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको आपने कंफर्म करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखें, यहाँ पे पासवर्ड लिखें, यहाँ पे पासवर्ड लिखें। आपके इस फ़ोन नंबर पर जो है एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, एक्टिव कोड करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने वो ईमेल नंबर या आपने वो वाला नंबर देना है जिसमें आपने आईडी बनाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, उसके बाद नीचे मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जगह बिल्कुल आपके पास ब्लैंक होगी। मेरे पास जो है ये कुछ इस तरह से इसलिए क्योंकि मैं पहले जो है काफ़ी प्रोग्रामों में आप लोगों को अप्लाई करके दिखा चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन डिस्टिंक्ट लर्निंग प्रोग्राम को चूज़ करना है, ये सेकंड वाले ऑप्शन को, ठीक है। तो जैसे आप ये सेकंड वाले प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम आ गए। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास SSC है, HSSC है, यानी कि मैट्रिक है, FSC है, सॉरी FSC नहीं है, FA, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, HSSC वाले, SSC वाले। इसके बाद आपके पास B.Ed प्रोग्राम है, BS प्रोग्राम है, यहाँ पे B.Ed 2.5 है। अगर इसमें से जिस प्रोग्राम में भी आप जो दाखिला लेना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे किसी एक प्रोग्राम में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये BS प्रोग्राम को सिलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं सेलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें जी मेरे पास ये प्रोग्राम ऐड हो चुका है, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो यहाँ पे ये आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ये ओपन का बटन है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपके पास ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म को आपने कंप्लीट करना होगा बस। यहाँ पे सबसे पहले आपने लास्ट डिग्री को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डिग्री आप देखें, अब ये डिपेंड करता है कि आपने एडमिशन किस में लेना है। अगर आप यहाँ पे अपना FA को सिलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे 10 ईयर आएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 ईयर को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इसके बाद मैं FA को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने FA किया हुआ है। अब यहाँ पे FA किस में किया हुआ है, तो FA मैंने मैथमेटिक्स में किया हुआ है, या जर्नल, तो मैंने जर्नल किया हुआ है। उसके बाद कौन से बोर्ड से किया हुआ है, मैंने बोर्ड BISC अहमदाबाद से किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्टिंग ईयर, तो मैंने जो है ये 2018 में स्टार्ट किया था FA, और 2020 में मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपने अपना लिखना है, मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने एग्जाम टाइप सेलेक्ट करने, एनुअल सिस्टम था। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं, मेरे टोटल मार्क्स 1100 थे। ऑब्टेन मार्क्स आपसे पूछ रहा है, तो मैंने जो है यहाँ पे 765 मार्क्स लिए, ठीक है। तो और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, अब जैसे ही आप यहाँ पे नीचे कंप्लीट एंड सेव सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा। बहुत ही सिंपल से स्टेप है। सबसे पहले आपने यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ स्टडी को सेलेक्ट करना है, ये पेंसिल का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, ये लोकल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ गए। मैंने आपको बताया मैं BS इंग्लिश में लेना चाहता हूँ, मैंने BS इंग्लिश सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये ऐड टू प्रोग्राम टू लिस्ट करेंगे ना, तो आपके पास ये प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें ये प्रोग्राम ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लिया। चाहे कोई भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी तरह से आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज देखें, अपडेट होगी। अब ये दोबारा फिर आप ये नीचे पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें आप अपना नाम, वालिद साहब का नाम, ये सब चीज़ें आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करना है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करके दिखाता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना जो है ये फर्स्ट आपने खाली छोड़ देना है, ये IOU रजिस्ट्रेशन है, ये आपने खाली छोड़ना है। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। चलो मैं जल्दी जल्दी आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया। आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है, मेल है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से जो है मेल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेट्रिक आपकी यहाँ पे अगर शादीशुदा हैं तो मेरिट करें, अगर सिंगल हैं तो सिंगल लिखें। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। उसके बाद रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे, मुस्लिम हूँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। ब्लड ग्रुप मेरा AB नेगेटिव है। डिसेबिलिटी कोई है, मेरी कोई डिसेबिलिटी माजूरी को कहते हैं कोई नहीं है। यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है, मैंने वो भी लिख दिया। वालिद साहब अगर जिंदा हैं तो अलाइव करेंगे, आप अलाइव हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, मैंने ड्राइवर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर आपने सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा नंबर उनका लिखना है। यहाँ पे मैंने नंबर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये नंबर उनका, ठीक है। उसके बाद काफ़ी SMS यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है। गार्डियन इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको खर्चा पानी कौन देते हैं, मेरे वालिद साहब ही मुझे देते हैं, मैंने वो कर दिया। अगर कोई और भाई वगैरह देते हैं या वालदा, तो फिर आप वो उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी जो है यहाँ पे फॉर्म बे का नंबर लिखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फॉर्म बे नंबर अगर नहीं लिखा जाता कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे नोटपैड पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये यहाँ पे आकर लिखना है नोटपैड पे, यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने जाकर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी करता हूँ, कट कर देता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको लाकर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करूँगा ये मेरे पास कंप्लीट यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर यहाँ पे लिखे नहीं जाते तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, मैंने पेस्ट किया, ये लिखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, परमानेंट एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है जी खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है।
ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा मेरा बड़ाग्राम है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। तहसील आपकी कौन सी है, मैंने तहसील सेलेक्ट कर दी जी। यहाँ पे एड्रेस आपने मुकम्मल लिखना है, ठीक है, मैंने एड्रेस ये लिख दिया जी, बस ये समझे बड़ाग्राम ही मैंने लिख दिया। एरिया आपने सेलेक्ट करना है, रूरल है अर्बन है, मैंने रूरल सेलेक्ट कर दिया। पोस्टल कोड आपने लिखना है, यहाँ पे मेरा पोस्टल एड्रेस जो है वो सेम एज बिल्कुल सेम है। आपने पोस्टल एड्रेस वो लिखना है जहाँ पे आप अभी जो है रिहाइश पजीर हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने शहर का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मैंने प्रोविंस सेलेक्ट करना है पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट मैंने वो सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा फिर डिस्ट्रिक्ट बड़ाग्राम सेलेक्ट कर दिया। ईमेल यहाँ पे लिखे, मैंने ईमेल अपना लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे होम टेलीफोन आप लिखेंगे, ऑपरेटर ये पे सेलेक्ट करेंगे। अगर होम टेलीफोन नहीं है तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ठीक है। मैंने ये फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है, ये फ़ोन नंबर भी मैंने लिख दिया। अंडरटेकिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आपके पास है जी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये रहा जी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। इसके ऊपर जैसे आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे आपके पास जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें ये 50% हो गया। अब आपने एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड करें। उसके बाद पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो ऐड करें, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। कोर्स इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे चलो मैं क्लिक करता हूँ, बीए की जो है कोर्स इन्फॉर्मेशन में आपने सब्जेक्ट खुद एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। बाकी जितने भी हैं बीएस हो गए और बाकी प्रोग्राम है उसमें ये ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करके देता है। जस्ट आपने ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी ये भी अपडेट हो गया। अब ये नीचे इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे फोटो वगैरह आपने अपडेट करनी है, ठीक है। अच्छा चला मैं आपको यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड का भी बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करें, जैसे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप डिग्री सेलेक्ट करें तो लाजमी बात है डिग्री में यहाँ पे 10 ईयर को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे 10 ईयर, उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, मैंने मैट्रिक किया है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने साइंस में किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी उसी तरह सेलेक्ट करनी, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। उसके बाद ये स्टार्टिंग ईयर किस में स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 16 में मैंने जो स्टार्ट की थी, और यहाँ पे मैं 18 में मैंने जो मैट्रिक थी वो जो है वो एंड हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर में लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइप आपने सेलेक्ट कर लेना है, एग्जाम टाइप मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ग्रेडिंग जो मार्क्स में होती थी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है, टोटल मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स भी लिख दिए 1100। उसके बाद ओपन मार्क्स कितने लिए थे मेरे 765 लिए थे। अब यहाँ पे इसको मैं सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें अपडेट हो गया। अब आपने यहाँ पे अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि बीएस के लिए कितनी तालीम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे आपके पास सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रह गया, तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे ये क्लिक केयर का बटन है छोटा सा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये भी अपडेट हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बाकी है जो कि मैंने आपको नहीं बताई, वो है जी यहाँ पे फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर आप जैसे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फोटो अपडेट करना है, फोटो अपलोड करना है, सॉरी। उसके बाद आपने यहाँ पे CNC के ऊपर क्लिक करके अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसकी दोनों साइड की पिक्चर लेकर आपने उसका PDF बनाना है, उसको 0.5 MB से कम तक कंप्रेस करना है। उसके बाद अपलोड कर देना है, ठीक है। लोकल टू मिसाल दोनों साइड का फोटो लेके उसको अपलोड कर दें, ठीक है। आप फोटो में अपलोड नहीं कर सकते, आप PDF में जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने वाले साहब के ID कार्ड की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है, फिर मैट्रिक की DMC और FA की DMC या FSC की वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन ये नीचे बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट जैसे ही होगा उसके बाद आपने ये नीचे तमाम तर जितने भी आपके पास यहाँ पे ऊपर आपके पास फोटो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी फोटो नहीं लगा हुआ, ठीक है, फोटो भी आ जाएगा। और यहाँ पे ये नीचे अगर आप देखें तो आपने यहाँ पे ये एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करना है, सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास नीचे एक चालान फॉर्म जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ID के साथ लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं एक और ID के साथ लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे देखें जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास सबमिटेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन करता हूँ तो बात हमारी यहाँ तक आ गई थी कि हमने कहा था कि यहाँ पे जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक चालान फॉर्म जनरेट होगा। तो वो चालान फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे ऊपर 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें जी ये 100% कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे ये नीचे एक आपके पास डाउनलोड का बटन आ गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये डाउनलोड का बटन है। यहाँ पे ये अनपेड लिखा हुआ है, यानी कि हमने जो है अभी तक फीस पे नहीं की। यहाँ पे आपने डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करनी है, छोटे से डाउनलोड के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक PDF ओपन होगा। यहाँ पे देखें जी PDF है जी, आ गया जी। कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल डाउनलोड करना चाहते हैं, इसीलिए तो हमने जो है यहाँ पे क्लिक किया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये PDF में ओपन होगा। अगर आप ये PDF ओपन नहीं हो रहा तो आप प्ले स्टोर पर जाकर PDF व्यूअर के नाम से एप्लीकेशन मौजूद है, उसको आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी यहाँ पे हमारे पास जो ये डाउनलोड हो चुका है। ये एक स्टूडेंट है जिसकी मैंने जो है BS में अप्लाई किया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसकी फ़ी जो है वो 15,100 रुपया दिखा रहा है। अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BA की जो है वो 4400 रुपये है। इसी तरह बाकी प्रोग्राम की प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे MCB बैंक में आप जमा कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वुमेन बैंक में, यूनाइटेड बैंक में, ABL बैंक में 24 घंटों के बाद आप अपनी फ़ी जमा करवा सकते हैं। अगर आप इजी पैसा UPS जैसे के जरिए करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट बाद जो है ये चालान नंबर है इसको इजी पैसा में जाकर *786 में लाकर फ़ी पेमेंट में जाकर आप इसको लिखेंगे वहाँ पर चालान नंबर को, तो आपकी जो है फ़ी ये वाली शो हो जाएगी वहाँ पे। अगर 19 अक्टूबर के बाद आप ये अपडेट करेंगे वहाँ पे जमा करवाएंगे, फिर 2 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, लेकिन फिर ये इसके साथ लेट फीस लग जाएगी। ये 1000 रुपये जो है लेट फीस लगेगी और ये आपकी 16,100 रुपये फ़ी हो जाएगी, ठीक है। आपने ये वहाँ पे जब पे कर दिया, यहाँ पे अपनी फ़ी जमा करवा दी, या फिर किसी इजी पैसा या जैस कैश की शॉप पे जाएँ तो वहाँ पे भी वो आपको करके दे देंगे। अगर आपके पास इजी पैसा या जैस कैश में पैसे हैं तो आप घर में बैठ के कर सकते हैं ये सब कुछ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ करने के बाद आपने फ़ी पे कर दी, आपको मैसेज आ जाएगा आपकी फ़ी पे हो गई और आपका दाखिला हो गया है, ठीक है। आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेड, यहाँ पे जो पेड लिखा हुआ आएगा ग्रीन सा, तो फिर इसका मतलब ये कि आपका दाखिला हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने वेट करना है, 1-2 महीने बाद आपको मैसेज आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका एडमिशन कंफर्म हमने कर दिया है। अब आपकी असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी, वो सब चीज़ें आएगी, आपको बुक्स के कोड वगैरह इशू कर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने BS में एडमिशन लिया तो आपके
वर्कशॉप्स वगैरह भी होंगी, असाइनमेंट्स भी होंगी। अगर आपने बीए में या मैट्रिक एफए में दाखिला लिए, फिर आपकी असाइनमेंट्स होंगी और एग्जाम होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बर वक्त जो है आपको इसी के मुतालिक जो वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुतालिक। तो आपने उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर देना है।